Ma'am, you are muted. Next, coming to their hands and feet, they are like human beings. Okay, तो proper उनके hands and they can hold the things like we can hold the things. तो जो उनकी grip है hands के कारण और जो उनके feet के कारण वो ज़्यादा है. Okay, so you can write down their hands and feet. Their hands and feet have opposable thumbs. जैसे हमारे हैं, ठीक है? Hands and feet have, हाँ जी, hands है बेटा, एन नहीं है वो, ये मैम का एन है. Their hands and feet have opposable thumbs. That means their hands and feet, they are like human beings, like we are having our hands and feet to hold the things firmly. So they can hold the things firmly. मतलब उनकी जो ग्रिप है वो क्या है, इजी ग्रिप है, किसी भी चीज के ऊपर इजीली उसको होल्ड कर लेते हैं. ठीक है, next write down, they have good eyesight. They have good eyesight to see the predators. तो चौथा पॉइंट इसका क्या हो गया है, that they are having good eyesight and they can easily see their predators. हाँ जी, हरीश रिपीट करो.
so that they can see their predators very easily. ठीक है. अब monkeys एक ऐसे भी होते हैं जिनका ये front part जो है, जो उनका mouth part है, they are having white hairs. Have you seen? ठीक है. They are called as loin-tailed macaque. Okay. They are the another category of monkeys. So now we will be writing the adaptation in case of loin. लिखिए adaptation in case of loin-tailed macaque. प्रे भी लिख सकते हो, प्रेडेटर्स भी लिख सकते हो, बचना. Adaptations in loin-tailed macaque. Okay, so these are another type of monkeys. Right. So like I told you, it is having silver white mane. This is the point of their characteristics. They are having silver white mane. जो उनके head के पास, जो उनके face के पास जो hairs हैं, they are having the hairs silver white. Okay. So it has silver white mane, which surrounds the head from cheeks down, which surrounds the head, which surrounds the head from the cheeks down to chin. Can you imagine in your mind? मेन इमेजिन कर सकते हो आप. ठीक है. तो जो फ्रंट पार्ट है उनका हम इसकी बात कर रहे हैं. That their front part is of silver white. Okay, that mane is of silver white. That starts from their head and that goes down into their chin. Okay. और ये मोस्टली आगे लिखिए. इनको और क्या कहते हैं? They are also known as beard ape. This is also known as beard ape. Loin-tailed macaque का other name है beard ape, and that was given by the German. ठीक है. इसका जर्मन नेम क्या है? beard ape. वो भी है, इसका ही नाम है. दोनों नेम है इसके. जर्मन्स ने इसको क्या नाम दिया है? beard ape कहा है. ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये डिस्टिंग्विश करती है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ओरिजिनेट करती है. ये मॉन्कीज को कैसे सेपरेट कर रही है दूसरों से? ठीक है. क्योंकि इनकी मेन है, मॉन्कीज की मेन नहीं है. ओके. Another name of loin-tailed macaque is beard ape. ठीक है. You can write down. जर्मन से. आगे लिखिए. Their tail is medium. अब इनकी जो टेल है that is also medium. और जो इनकी टेल पे भी थोड़े थोड़े white hairs हैं. Okay. Their tail is medium and has black tuft. जैसे लॉइन की टेल होती है, देखिए आपने, लॉइन की टेल में भी लास्ट पे जो है वो ब्लैक कलर के टफ्ट होते हैं. ठीक है. सो इन द सेम वे दे आर हैविंग मीडियम टेल with black tuft at the end. With the black tuft at the end. Tuft, T-U-F-T. With black tuft at the end. इतना पार्ट ब्लैक है. नेक्स्ट ये जो है दैट इज सिल्वर. ये टफ्ट पार्ट है. ठीक है. टफ्ट पार्ट इज ब्लैक एंड नीचे वाला जो है वो व्हाइट है. ओके. एट द एंड हल्का हल्का व्हाइट है. यहां तक सारा ब्लैक है. ठीक है.
आगे लिखिए। अब ये खाता क्या है? इट फीड्स ऑन फ्रूट्स, सीड्स। क्या क्या खाता है ये? इट ईट्स फ्रूट्स, सीड्स। आगे लिखिए। young leaves, stems, flowers and buds. Young leaves, stems, flowers and buds. Okay, and it also feeds on insects. जो ट्रीज के बाग्स पे इंसेक्ट्स हैं, आपने देखा होगा समटाइम्स व्हेन यू गो इनटू द गार्डन्स, जो बाग्स ऑफ द ट्रीज है उनके ऊपर इंसेक्ट्स चढ़ते हैं ना, या ब्रांचेस पे भी इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये इनके ऊपर भी फीड करता है, क्योंकि वो ट्रीज के ऊपर ही होते हैं, इसीलिए इसको ग्राउंड पे आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, हाँ जी, इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स ऑल्सो, इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स ऑल्सो। ओके, so this point you have to add on that ये next point है insects वाला, it feeds on insects also, so that are easily found on the bark of the trees, so they don't usually come near to the ground or on the ground. तो ये ground पे कम ही आते हैं, trees पर ही रहते हैं। They mostly found उत्तर प्रदेश में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, they mainly feed on insects. Is this clear? Yes, ma'am. They mainly feed on insects that are usually found on the barks and the branches of the trees. So they hardly or rarely come on the ground. इसीलिए वो ground पे कम ही आते हैं। Okay, जहाँ पर उनका शिकार हो सकता है। Okay, they can be as the prey for their predators. Okay. So this is all about the adaptations in case of lion-tailed macaque. Next, write down adaptations in case of big cats. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे आप if you see Discovery channels, ठीक है, तो हम अब ग्रासी एरिया पे जाने लगे हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रास होती है एंड ओपन फील्ड्स होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रीज नहीं है, थोड़ा सा ओपन फील्ड एरिया है। अब हम उसको इमेजिन करेंगे, ठीक है, एंड here we will be writing the adaptations that are common for the big cats, lion, tiger, leopards, ठीक है। तो अब जो मैं आपको adaptations करवाऊंगी, इनमें से अगर आपको किसी की भी आ जाती है तो हमने सबके लिए कॉमन लिखनी है, ठीक है। So now we are going to write down the adaptations in case of big cats, lion, tigers, leopards, ठीक है। तो leopards, ओके, तो इनके लिए leopards, तो इनके लिए हम कॉमन अडेप्टेशंस लिखेंगे सबके लिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जो ग्रासी एरियाज आपको दिखते हैं, ठीक है, लेपर्ड्स बेटा, लायन, टाइगर्स, बिग कैट्स एंड लेपर्ड्स। मैं आपको बोल रही हूँ अभी ये अडेप्टेशंस उन एनिमल्स के लिए है जो ग्रासी एरियाज में रहते हैं, ओपन फील्ड एरियाज है जहाँ पे बहुत कम ट्रीज हैं, वेयर दे कैन मूव वेरी इजीली, दे कैन रन, ठीक है। इमेजिन कर सकते हो ऐसे एरियाज, ठीक है, ग्रासी है, ग्रीन है, येलो एरियाज हैं, ठीक है, ग्रीनरी है, येलोइश जो है वो थोड़ा सा टच है ग्रीनरी में, ऐसे एरियाज हैं। नाउ राइट डाउन। हाँ जी, सबसे पहले ये सारे जो मैंने लिखे हैं, ये सारे किस पे फीड करते हैं, क्या खाते हैं ये? फ्लैश। दे ऑल ईट द फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स। दे ऑल ईट फ्लैश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स, ओके। अब they are having the strong sense of smell, जिससे वो very easily जो है वो अपने prey को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। so they are having very strong sense of smell। हाँ जी बेटा, इसी पॉइंट में ऐड कर सकते हो, strong sense of smell to find the
प्रे। तो इनके नॉर्मली प्रेज कौन बनते हैं? छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, कलर कैसा होता है इन सबका? येलोइश। तो अभी मैंने बोला है आपको कि हमने एरियाज जो है वो ऐसे अज्यूम कर रहे हैं जो थोड़े से येलोइश ग्रीनरी टच में है। ओके, अब इनका भी कलर येलो है और जहां पर ये रहते हैं वो एरियाज भी थोड़े से येलोइश टच में आते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है? ठीक है, तो ये अपने आप को उन ग्रासेस में क्या कर लेते हैं? हाइड कर लेते हैं। ओके, सो यू कैन राइट डाउन द येलो ब्राउन कलर with black stripes on tiger. टाइगर पे स्ट्राइप्स होती हैं बट लाइंस पे नहीं होती हैं, ठीक है। द येलो ब्लैक कलर with stripes on tiger and only yellow color of lion on tiger. Yellow color with black stripes on tiger and yellow color of lion. They help them to blend themselves with the surroundings. They help them to blend themselves with the surroundings. प्रॉपर्टी लिख लेनी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? कैम्यूफ्लेजिंग. So that helps them to camouflage. Blend का मतलब क्या होता है? कैम्यूफ्लेज लिया. ओके, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? कैम्यूफ्लेजिंग. अपने आप को उसमें वो क्या कर लेते हैं? सेम कर लेते हैं. ओके, सो ब्लेंडिंग का मतलब ही यहाँ पर कैम्यूफ्लेजिंग है. ओके, दैट हेल्प इन दी कैम्यूफ्लेजिंग प्रॉपर्टी. तो कैम्यूफ्लेजिंग से वो किससे बच सकते हैं? प्रेडेटर्स से. ओके, नेक्स्ट राइट डाउन. दे आर हैविंग वेरी शार्प आईसाइट. आईसाइट्स कैसी होती हैं इनकी? इजीली लोकेट कर लेते हैं ना प्रे को. जैसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है वैसे ही दे आर हैविंग द शार्प आईसाइट. ओके, शार्प आईज. हाँ हाँ, आप लिख सकते हो, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है. चलिए आगे लिखो. कैम्यूफ्लेजिंग वाला हो गया, शार्प आईसाइट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट लिखो, दे कैन रन वेरी फास्ट. ठीक है, तो जैसे ही अपना प्रे देखते हैं वैसे ही उसके पीछे क्या कर देते हैं? भागना शुरू कर देते हैं. ओके, सो दे कैन रन वेरी फास्ट. इनके क्लॉज कैसे होते हैं? पंजे कैसे होते हैं? शार्प. लंबे होते हैं, लॉन्ग है, शार्प है. सो राइट डाउन, देयर क्लॉज आर लॉन्ग, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग. Their claws are long, लंबे होते हैं, strong होते हैं, and they are sharp. Okay. आगे लिखिए, to hold the prey. ठीक है, they have long, strong, sharp claws to hold the prey. ठीक है, so with this your chapter is complete. We can discuss the NCERT exercises. ठीक है, बट उससे पहले हम ब्लू बॉक्स क्वेश्चन सारे एक बार ही देख लेते हैं. बेटा अभी आपने देख के लिखना है. सी, आपने नंबर ऑफ अडेप्टेशंस लिखी हुई हैं. लॉयन के लिए अलग है, ठीक है. टाइगर्स, बिग कैट्स एंड लियोपर्ड्स के लिए अलग अलग है, ठीक है. बट कॉमन क्या है इनकी? अब जैसे अगर आपको लॉयन एंड टाइगर लिखा हुआ है, अब आपको ये पता है ना कि टाइगर के ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं बट लॉयन के नहीं होती हैं. तो अगर आपसे अडेप्टेशंस लॉयंस में पूछ रहे हैं तो आपने सिर्फ उसका कलर लिखना है कि येलो कलर है, स्ट्राइप्स थोड़ी ना लिखने हैं फिर.
बाकी सारा सेम है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, हेयरिंग है, ठीक है। दे कैन रन वेरी वेरी फास्ट, कैम्यूफ्लेज कर जाते हैं अपने आप को, और दे आर हैविंग क्लॉज। सबका सेम है, बाकी सबका सेम है। कलर्स आप लिख देना सेम है। दे आर हैविंग येलो कलर दैट कैन इजीली कैम्यूफ्लेज विद द सराउंडिंग्स, जो ग्रासेस का कलर है। ओके सो नाउ लेट्स डिस्कस द ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके तो पहले आप देख लो एक बारी सारी पिक्चर्स सारे एनिमल्स की। अगर आपने कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। पेंगुइन्स की देखिए, ऐसे चलो, पेंगुइन्स की देखो। कैन यू सी पेंगुइन्स ऑन पेज 73? पोलर बियर्स हैं उसके नीचे। सिबेरियन क्रेन्स देखो, देखे आपने? देन रेड आइड फ्रॉग देखो, उसकी आईज रेड रेड, ग्रीन उसका कलर है। मॉन्कीज देखो, अ न्यू वर्ल्ड मॉन्की। टोकन बर्ड देखो, पीक देखो उसकी कैसी है, बड़ी बड़ी कलरफुल। देन लॉयन टेल मसाक देखो, एंड एलिफेंट। एलिफेंट तो आपने देखा ही हुआ है। ओके चलिए, एनी ब्लू बॉक्स क्वेश्चन लेफ्ट तो देख लो, हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। सो दिस आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो वेदर रिपोर्ट्स है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और वो कौन कौन सा डाटा प्रिपेयर करते हैं रिगार्डिंग द टेम्परेचर, विंड, ठीक है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इनके रिगार्डिंग। रेनफॉल हम कैसे मेजर करते हैं? रेन गॉड से, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर है जिसके ऊपर क्या लगी होती है? फनल अटैच होती है। ओके उसके बाद देखो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन 70 पे कहते हैं कि सारे वेदर चेंजेस कौन करता है? सन। ओके so sun is a huge sphere of hot gases. Okay and sun is the primary source of energy. This can be a question for you. Who is the primary source of energy? Sun. Okay energy absorbed and reflected by earth's surface, ocean, atmosphere. बताया था ना मैंने आपको कि जो ओशंस हैं, ठीक है, ओशंस का जो वाटर है जब वो हीट अप हो जाता है, इट फॉर्म्स वाटर वेपर्स, जो ऊपर जाके क्या बनाता है? दैट फॉर्म्स क्लाउड्स। ओके और अगर आप कोस्टल एरियाज के पास रहते हो तो क्या वेदर चेंजेस ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हो? क्योंकि कोस्टल रीजन्स में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते। तो दी थी ना मैंने एग्जांपल आपको मुंबई साइड की, मुंबई चेन्नई साइड, वहां पर जो है वो मेनली वेदर जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट, बहुत कम चेंजेस होते हैं वेदर। तो इसलिए जो बॉम्बे या मुंबई का टेम्परेचर है वो मेनली हॉट ही रहता है, ठीक है, एक सा ही रहता है। Beta, you can see if you are having any doubt, then we will be proceeding with the NCERT question answers. उन्होंने पूछा है I wonder why weather changes so frequently. What is the source of weather in the first place? क्या हो सकते हैं sources weather change के? जो उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू यू और शैल आई कंटिन्यू विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस? थोड़ा सा मास्क नीचे करके बोलो। सेकंड, हाँ करते हैं स्टार्ट बेटा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ आपको चैप्टर में और कोई डाउट है कि नहीं? बैठो भी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है दैट इज हॉट, ह्यूमिड एंड रेनी। रेनफॉल भी रहती है वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम। आप ब्लैंक की बात कर रहे हो, मैं कह रही हूँ हम डिस्कस करते हैं बेटा, वी विल बी डिस्कसिंग। हाँ जी, एनी डाउट टू एनीवन? करें फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। आप सबने देख लिया हो एक बारी चैप्टर? एनी न्यू वर्ड यू फाइंड जो हमने नहीं किया?
सावे एनी डाउट? बोलिए बेटा। मैम जो है आपने रेपिटेशंस नहीं कराई बिग कैट्स की लॉ एंड टाइप्स हाँ जी वाले बेटा, वर्ड्स हाँ की जी। मैम जो उसका थर्ड पॉइंट था द येलो ग्राउंड वाला मैम वो एक बार रिपीट The कर दो yellow color in case of lion and yellow color with black stripes in case of tigers. That helps them in the blending with the surroundings. ठीक है, वो surroundings के साथ blend करने में help करता है. That shows the camouflaging effect. Okay. ओके मैम चलिए, let's start the question answers now. Name the elements that determine the weather of a place. Last, एक बोलना है, only one element. Rainfall. First X, humidity. Speed and direction of wind. 3 हो गए हैं. स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर. ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स. When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? Last X. Maximum temperature in the afternoon and minimum temperature in the early morning. Next, you can write down the fill in the blanks. The average weather taken over a long time is लंबे टाइम के लिए मितार्थी. Very good. A place receives a very little rainfall and the temperature is high throughout the year. The climate of that place will be dash and dash. Harmeet, hot and humid. Okay. The two regions of the earth with extreme climatic conditions are. Extreme मतलब polar regions की बात करें. आदगुन, तो आप कोई भी polar regions में लिख सकते हो. ठीक है, you can write down South Pole, North Pole also, Antarctic regions. ठीक है, Arctic regions also. कुछ भी लिख सकते हो इसमें examples. ठीक है जी. इसमें आप you can see on the page number 72 there are number of places given to you. पोलर रीजन्स में आप नॉर्थ पोल साउथ पोल भी लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद जो सारे पोलर रीजन्स है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया, और कौन कौन सी हैं, इंडिया, मलेशिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए हैं ये सारी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा एंड नाइजीरिया. ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए इंक्लूड कर सकते हो और ऊपर वाले जो हैं वो आप पोलर रीजन्स के लिए इंक्लूड कर सकते हो. ओके, तो एनी एग्जांपल यू कैन राइट. नेक्स्ट, indicate the type of climate of the following areas. Garish, Jammu and Kashmir, cold and windy. Kerala, Mitarthi, hot. Rajasthan, hot. Northeast India, Kartik, hot and humid. ठीक है. Fifth question, which of the two changes frequently? Weather changes frequently.